السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں تقریباً 10 ماہ بعد آج سے اسکول دوبارہ کھل چکے ہیں۔ کورونا کے کم ہو رہے انفیکشن اور ویکسینیشن کے آغاز کے درمیان ایک بار پھر سے بچے اسکولوں میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ بورڈ کے امتحانات سے قبل دارالحکومت میں 10ویں 12ویں اسکول کھل چکے ہیں، جہاں پہلے ہی دن بچے پہنچنے لگے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے وہاں ٹھوس انتظامات کیے گئے ہیں۔ جب دہلی کے سرودیا کینیا اسکول میں 12ویں کلاسز کے طلبہ پیر کی صبح اسکول پہنچے تو انہوں نے فتح کا نشان دکھا کر خوشی کا اظہار کیا۔ 10 مہینے کے بعد اسکول کھل گئے ہیں، لہٰذا تمام بچے ماسک لگا کر آ رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کے معاملے میں 21 جنوری کو فیس بک ٹویٹر کے افسران کو طلب کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کمیٹی نے شہریوں کے مفاد کا خیال رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل اسپیسز میں خواتین کے تحفظ کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے فیس بک اور ٹویٹر کے افسران کو طلب کیا ہے۔ دونوں کمپنیوں کے افسران کو 21 جنوری کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ سمن ایسے وقت میں بھیجا ہے جب ڈیٹا پرائیویسی کو لے کر کافی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے ملک میں کووڈ-19 ٹیکہ اندازی کے دوسرے دن کہا کہ اب تک 2,24,301 افراد کو ٹیکہ دیا گیا ہے، جن میں سے صرف 447 افراد پر مضر اثرات مرتب ہوئے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت کے ایڈیشنل سیکریٹری منوہر اگنانی نے کہا کہ 447 افراد میں سے جن پر مضر اثرات مرتب ہوئے، صرف 3 کو دواخانے میں شریک کرنے کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کو صرف 6 ریاستوں میں ٹیکہ اندازی مہم چلائی گئی اور 553 سیشنز میں جملہ 17,072 استفادہ کنندوں کو ٹیکہ دیا گیا۔ جن 6 ریاستوں میں اتوار کو ٹیکہ اندازی ہوئی، ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، کرناٹک، کیرالہ، منی پور اور تمل ناڈو شامل ہیں۔ سینئر اداکار نصیر الدین شاہ نے ملک میں لو جہاد کے نام پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 70 سالہ اداکار نے کاروان محبت ہندوستان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ تبصرہ کیا، جسے یوٹیوب چینل پر پیش کیا گیا۔ نصیر الدین شاہ نے کہا کہ مجھے اتر پردیش میں لو جہاد کے تماشے اور انتشار کی کوششوں پر کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ اصطلاح وضع کی ہے وہ جہاد کا مطلب نہیں جانتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قدر احمق ہوگا کہ وہ یہ بات مان لیں کہ مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں جہاں بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع ایک عرصے سے چل رہا تھا، وہاں پر ہندو مسلم اتحاد کی ایک مثال دیکھنے میں آئی ہے۔ ایودھیا میں عظیم الشان رام مندر کی تعمیر کے لیے فرقے وارانہ ہم آہنگی کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے ایودھیا کے مسلمانوں نے مندر کی تعمیر کے لیے چندہ دینے میں اپنا دل کھول لیا ہے۔ ایودھیا کے 1 ڈزن سے زیادہ ممتاز مسلمانوں نے فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم میں حصہ لیا ہے، جس کی قیادت وشوا ہندو پریشد کے کارکنان کر رہے ہیں۔ بھوپال ضلع انتظامیہ نے اتوار کو 3 پولیس اسٹیشن حدود میں کرفیو اور بعض دیگر علاقوں میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ پرانے شہر میں ایک فرقے کی جانب سے تعمیراتی کاموں کے مسئلے پر احتیاطاً یہ تحدیدات نافذ کی گئی ہے۔ بھوپال ضلع مجسٹریٹ اویناش لوالینا کی جانب سے جاری ایک حکم میں کہا گیا ہے کہ یہ فرقہ پرانا شہر میں کچھ تعمیراتی کام کر رہا ہے اور مقامی افراد کی جانب سے مخالفت کا امکان ہے، اسی لیے یہاں پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے ہندوستانی ہم منصب نریندر مودی کو G7 سمٹ میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے اور 11 تا 13 جون برطانیہ کے ساحلی مقام کارنوال میں برطانیہ کی صدارت میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کی تفصیلات کی توثیق کی ہے۔ بورس جانسن نے گزشتہ سال مودی کو ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران مدعو کیا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کو بھی اس ہم رخی چوٹی اجلاس میں مہمان ممالک کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا۔ اتوار کو رسمی دعوت نامہ روانہ کیا گیا۔ ریاست اتر پردیش میں پیش آئے ہاتھا اور سسٹمائی عصمت ریزی واقعے کے خلاف احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو موٹی چمڑی کا قرار دینے والے شخص کی گرفتاری کو الہ آباد ہائی کورٹ نے روک لگا دی۔ جسٹس انجنی کمار مشرا اور جسٹس شیکھر کمار یادو پر مشتمل الہ آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے اس مقدمے کی اگلی سماعت کو 6 ہفتوں بعد مقرر کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو اندرون 4 ہفتے اس معاملے میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ FIR میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس شخص نے احتجاج کے دوران ریمارکس کرتے ہوئے پولیس پر تساہلی برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو موٹی چمڑی والا شخص قرار دیا تھا۔ شیو سینا نے مغربی بنگال میں ہونے والے اسمبلی انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ مغربی بنگال میں اس سال اپریل مئی میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں شیو سینا بھی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے ٹویٹ کر کے اس کا اعلان کیا۔ سنجے راوت نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بہت وقت سے جس خبر کا انتظار تھا، پارٹی سربراہ ادھو ٹھاکرے سے تبادلہ خیال کے بعد شیو سینا نے مغربی بنگال الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔
समाजवादी पार्टी के ताकतवर लीडर मोहम्मद आजम खान को हुकूमत ने एक और झटका दिया है। रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की 173 एकड़ अराजी पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन को हुकूमत ने अपने नाम दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश काबीना के साबिक वजीर आजम खान की रामपुर की अराजी को जिला नज़्म व नस्र ने अपने कब्जे में लेने के लिए अहकाम जारी किए हैं। आजम खान के अरकान खानदान इस ट्रस्ट को चलाते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत जेपी गुप्ता ने रूलिंग दी कि ट्रस्ट ने अराजी की खरीदी के दौरान उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने एसडीएम के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया है। आजम खान ने यह अराजी खरीद कर यूनिवर्सिटी तामीर करवाई थी। बीजेपी हुकूमत आने के बाद से उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है। मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में बर्ड फ्लू के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि महाराष्ट्र के लातूर, परभनी, नांदेड़, अब पुणे, शोलापुर, अहमदनगर, बीड़, रायगढ़ और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, गुजरात के सूरत, नावासारी, नर्मदा, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्ड फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर से लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तार 10 मुलजिमीन, जिनमें 2 खातून भी शामिल हैं, इनको मुकदमे से डिस्चार्ज यानी इनके खिलाफ कायम मुकदमा खत्म करके इन्हें जेल से फौरन रिहा किए जाने की दरख्वास्त जमायत उल हिंद की कानूनी इमदाद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल कर दी गई है। रिलीज के मुताबिक जमायत उल हिंद ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमतें लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को हरासा कर रही है और आईन हिंद के जरिए हासिल बुनियादी हुकूक को इख्तिदार के बलबूते पर पामाल कर रही है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन ने अपने मुजवज़ा इंतज़ामिया में कम अज़ कम 20 हिंद अमेरिकियों बशमुल 13 ख़वातीन को अहम ओहदों पर मुक़र्रर किया है। यह हिंद अमेरिकी बरादरी के लिए एक रिकॉर्ड है जो अमेरिकी आबादी का महज 1% है। इनमें से 17 बाइडेन इंतज़ामिया में बासर व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में तैनात होंगे, जिनमें मीरा टंडन भी शामिल हैं, जिन्हें डायरेक्टर मैनेजमेंट और बजट मुक़र्रर किया गया है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन दफ्तर में अपने पहले दिन कई आमेला अहकामात जारी करेंगे, जिनमें बाज़ मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के सफ़र पर पाबंदी की बर्खास्तगी का हुक्म भी शामिल होगा। व्हाइट हाउस के मुतवक्के चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लीन की जानिब से जारी एक मेमो के मुताबिक नया अमेरिकी इंतज़ामिया पहले 10 दिनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप की कई पॉलिसियों को उलटने का अमल शुरू करेगा। इनमें कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिश, पेरिस माहौलियाती तब्दीली मुआहदे में दोबारा शमूलियत और लाखों अफराद को शहरियत देने से मुतालिक इमिग्रेशन कानून शामिल हैं। इजराइल में फाइजर कंपनी की कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाने के बाद कम से कम 13 अफराद के चेहरे में हल्के लकवे की इत्तलात मौसूल हुई है। वजारत सेहत के अहदेदारों ने ये इत्तला दी है। वाईनेट के मुताबिक डॉक्टरों का अंदाज़ा है कि इस तरह के मामलात में इजाफा हो सकता है और उन्होंने इस तरह के मुज़र असरात के पेश नज़र इस वैक्सीन की दूसरी डोज को लगाए जाने पर शुबे का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि अगर इन लोगों की हालत बेहतर होती है तो इसके बाद ही इन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हालिया इंतखाबात में 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स के नामों पर मुश्तमिल गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 मुंतखब उम्मीदवारों और इनकी पार्टी की तफसीलात के साथ वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की तफसीलात भी नोटिफिकेशन में शामिल की गई। इस तरह मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन की राह हमवार हो चुकी है। 10 फरवरी के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए बिलवास्ता इलेक्शन होगा। 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स को हलफ लेने गेजेट की इजराई ज़रूरी है। मौजूदा कॉर्पोरेशन की मियाद 10 फरवरी को ख़त्म हो रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन तौक़्क़े है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए इलामिया और शेड्यूल जारी कर देगा। लिंगोजीगुड़ा वार्ड में ज़मनी इंतखाब मेयर के इलेक्शन के बाद होगा। इस हल्के के 9 मुंतखब बीजेपी उम्मीदवार ए रमेश गौड़ का हलफ बर्दारी से कबल देहांत हो गया, जिसके सबब यह हल्का मखलूआ है जहां ज़मनी इंतखाब होंगे। 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स पर मुश्तमिल जनरल बॉडी का पहला इजलास 10 फरवरी के बाद मुनक्किद होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा, जिसके बाद कॉर्पोरेटर्स और बाएतबार ओहदेदार इस दिन का या किसी और दिन मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना में गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। दिसंबर में 4 हफ्तों तक फ्यूल की कीमतें जूं की तूं बरकरार रही, जिससे अवाम को आर्जी तौर पर राहत मिली, लेकिन जनवरी में कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते से इसका आगाज़ हुआ और गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में पेट्रोल 88 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त हुआ। 8 दिसंबर से 5 जनवरी तक पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 80 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर किया गया था। गुज़श्ता 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 5 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 12 पैसे का इजाफा हुआ है। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय ने कहा कि 2023 के इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार पर कब्जा करने सख्त मेहनत करेगी। पार्टी मुल्क और सच्चाई के लिए आगे बढ़ेगी। पार्टी आमेला कमेटी इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पार्टी गोलकुंडे पर जाफरानी परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए तश्कील दी गई, ताहम इसमें कोई पेशरफ नहीं की गई।
हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से 9वीं और 10वीं जमात के बाकायदा क्लासेस के आगाज़ के फैसले के बावजूद बेशतर खानगी स्कूलों की जानिब से स्कूलों की कुशादगी के बजाय मौजूदा तरीक़ा और ऑनलाइन तालीम पर इक्तफ़ा पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने स्कूलों की कुशादगी के लिए जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं इन पर अमल बेशतर स्कूलों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर क्लासेस में 6 फीट के फासले से तलबा की नशिस्तों का इंतज़ाम किया जाता है तो एक क्लास के तलबा को 3 या 4 रूम्स में नशिस्तों का इंतज़ाम करना पड़ेगा और इन तमाम क्लासों के लिए अलहदा असातिज़ा का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो खानगी स्कूलों पर मज़ीद माली मुश्किलात आयद करने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर करदा टॉयलेट्स और वज़ू खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। तामीरी कामों पर 21,65,000 रुपये का खर्च आया है। इस मौके पर सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मुकामी कॉरपोरेटर्स, बल्दी ओहदेदार और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार मौजूद थे। ज़ायरीन को दुश्वारियों के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए वज़ू खाने और टॉयलेट की तामीर व मरम्मती कामों का फैसला किया गया था। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना में मुर्गियों के फौत होने का ताल्लुक बर्ड फ्लू से नहीं है, बल्कि जांच से यह बात सामने आई है कि मुर्गियों की अमवात दरअसल मुनासिब निगहदाश्त ना होने की वजह से हो रही है। निज़ामाबाद, वरंगल, डिचपल्ली, निर्मल व दीगर अजला में मुर्गियों के मरने के वाक़यात के बाद अब मंचरियाल के फार्म में 500 मुर्गियों के फौत होने की इत्तला है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मंचरियाल में जो मुर्गियाँ फौत हुई हैं इनमें बर्ड फ्लू के असरात नहीं थे, लेकिन तौसीक़ हुई है कि फार्म पर मुर्गियों की बेहतर निगहदाश्त न किए जाने से ये परिंदे फौत हो रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीक़ के बावजूद तेलंगाना में बर्ड फ्लू की तौसीक़ नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक जितनी मुर्गियाँ फौत हुई हैं वो मुनासिब देखभाल ना होने से हुई है। शहर में बर्ड फ्लू की वबा की अफवाहों के बाद से ही चिकन की कीमतों में गिरावट आने लगी है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चिकन की कीमत में 60% से कमी आई है। गुज़िश्ता 3 दिन संक्रांत के सबब चिकन की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान भी कीमतों में इस्तेहकाम के इम्कानात नहीं है, जिसकी वजह से रिटेल मार्केट मुतासिर हो चुकी है। रियासत में 6वीं जमात से 8वीं जमात तक के क्लासेस 15 फरवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने हुकूमत को एक तजवीज़ रवाना की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 1 फरवरी से स्कूली सतह पर 9वीं जमात से क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। अव्वल ता 8वीं जमात के तलबा के क्लासेस के सिलसिले में हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। इस सिलसिले में महकमा तालीम को कोरोना की वबा के दौरान 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का जायज़ा लेने की हुकूमत ने हिदायत दी थी। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक महकमा तालीम ने 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा को 15 फरवरी से क्लासेस शुरू करने की तजवीज़ तैयार की है। हुकूमत को रवाना करदा तजवीज़ में बताया गया कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस का 2 हफ्तों तक जायज़ा लेने के बाद निचली सतह की जमातों की क्लासेस शुरू की जा सकती है। ओहदेदारों ने बताया कि 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 17 लाख से ज़ायद है, जिनमें सरकारी और खानगी स्कूलों के तलबा शामिल हैं।